evening to one and all. Welcome back to my channel, and without wasting any time, let's move forward to our today's MCQ series. Question number 1 is, which of the following is loose flower? Options are A. Gypsophila heliconia, B. Orchid gladiolus, C. Rose carnation, or D. Marigold jasmine. Here the right answer is option number D. Marigold and jasmine are examples of loose flowers. Beside that, option number B and C, which is orchid, gladiolus, rose and carnation, are the example of cut flowers. And gypsophila and heliconia are the examples of specialty flowers. What are loose flowers? Loose flowers होते हैं जिनको हम विदाउट स्टेम हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, फ्रेश हार्वेस्ट करते हैं. जैसे मैरीगोल्ड है, उसमें हम स्टेम के साथ उसको हार्वेस्ट नहीं करते हैं. वैसे और जो कट फ्लावर्स होते हैं उनको हम स्टेम के साथ हार्वेस्ट करते हैं, और जो कट स्पेशलिटी फ्लावर्स होते हैं उनको हम स्टेम के साथ हार्वेस्ट करते हैं, और उनकी जो वेस्ट लाइफ है, स्टोरेज लाइफ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है. इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लॉकेट ऑफ द गार्डन? ऑप्शंस आर ए रोज, बी लॉन, सी लोटस, और डी फाउंटेन्स. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लोटस इज कॉल्ड एज लॉकेट ऑफ द गार्डन. बिसाइड्स लॉन क्या होता है? लॉन को बोलते हैं हार्ट ऑफ द गार्डन, एंड लॉकेट ऑफ द गार्डन इज लोटस. नेक्स्ट इज पर्शियन एंड मुगल गार्डन आर एग्जाम्पल्स ऑफ. ऑप्शंस आर ए फॉर्मल गार्डन, बी इनफॉर्मल गार्डन, सी फ्री स्टाइल गार्डन, एंड डी नन ऑफ दिस. Here the right answer is option number A. Persian and Mughal garden are the example of formal garden. Next is, at which place the art of Indian style gardening reached first? Options are A. Japan, B. China, C. Taiwan, or D. Persia. Right answer is option number B. So art of Indian style gardening reached first in China. Now next is, who introduced Mughal garden to India? Options are A. Babur, B. Humayun, C. Akbar, or D. Shah Jahan. Here the right answer is option number A. So it was Babur who introduced Mughal garden to India. Next question is, white kachnar Bauhinia alba in Mughal garden represent? Options are A. Source of life, B. Renewal of life, C. Immortality, and D. Youth and life. Here the right answer is option number D. Okay, white kachnar क्या represent करता है? Youth and life. Next question is, the main concept of Persian paradise is. Options are A. Nehrs, B. Flowing water canals, C. Both A and B, and D. Stones. So यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जो मुगल गार्डन का फेमस गार्डन स्टाइल है इंडिया में, वो रेप्लिका है ऑफ द एंशियंट पर्शियन गार्डन ओनली. तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि फीचर्स मुगल गार्डन के मेन क्या थे? नहर था, फ्लोइंग वाटर, रनिंग वाटर. सो हियर द राइट आंसर इज सी, बोथ A and B. Next is, cypress in Mughal gardens represents. Options are A. Source of life, B. Renewal of life, C. Immortality, or D. Youth and life. Here the right answer is option number C. That is, cypress in Mughal gardens represent immortality. Next question is, flowering trees and waterways in Mughal gardens represents. Options are A. Source of life, B. Renewer of life, C. Immortality, and D. Youth and life. Here the right answer is option number C. Flowering trees and waterways in Mughal gardens represents immortality. Next is, Japanese gardens are the examples of. Options are A. Formal garden, B. Informal garden, C. Freestyle garden, and D. None of these. So formal garden के examples थे पर्शियन एंड मुगल, एंड इनफॉर्मल गार्डन के एग्जाम्पल्स हैं जापानीज गार्डन्स. कैसे याद रख सकते हो आप कि जो पीएम होता है ना, उसको हमेशा फॉर्मल ड्रेसेस पहनी पड़ती हैं, ठीक है, उसको फॉर्मल रहना पड़ता है. तो जो पीएम है पर्शियन और मुगल है, वो फॉर्मल गार्डन के एग्जाम्पल हैं. और यहाँ पे इन, ठीक है, इन आ रहा है और जापानीज़ में नी आ रहा है. नी और इनको करेंगे हम रिलेट, तो जापानीज़ गार्डन किसके एग्जाम्पल्स हैं? इनफॉर्मल गार्डन के. इसके अलावा जो रोज़ गार्डन है वो है एग्जाम्पल यहाँ पे फ्री स्टाइल गार्डन का, ठीक है, जो थर्ड बच गया ना, उसका एग्जाम्पल है रोज़ गार्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइफ ऑफ मुगल गार्डन? ऑप्शंस आर ए टेरेसेस, बी चबूतराज, सी रनिंग वाटर, एंड डी बारादरी. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रनिंग वाटर. टेरेसेस, चबूतराज, बारादरी, रनिंग वाटर,
ये सारे फीचर्स हैं मुगल गार्डन के, चारों ही हैं। लेकिन लाइफ की बात करें तो रनिंग वाटर जो है वो लाइफ है, ठीक है। ऐसे याद रखना है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, उसके अलावा तो सारे दीवारें धो रही हैं, है ना। तो उससे याद रख लेना कि मुगल गार्डन की लाइफ क्या है, रनिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नेचर ऑफ मिनिएचर। ऑप्शंस आर ए मुगल गार्डन, बी पर्शियन गार्डन, सी जापानीज गार्डन एंड डी नन ऑफ दीज। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जापानीज गार्डन। अब इसको कैसे याद रखेंगे, नेचर ऑफ मिनिएचर, नी आ रहा है, जापानी मीनी, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लो। तो नेचर ऑफ मिनिएचर कौन है, जापानीज गार्डन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया, फ्री स्टाइल गार्डन का एग्जाम्पल कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी रोज़ गार्डन है एग्जाम्पल ऑफ फ्री स्टाइल गार्डन। क्योंकि बाकी तो आपने याद रख लिए, पीएम क्या है, मुगल और पर्शियन फॉर्मल है, जापानीज़ क्या है, इनफॉर्मल है, बचा रोज़ गार्डन, वो है फ्री स्टाइल गार्डन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ जापानीज़ गार्डन्स। ऑप्शंस आर ए हिल गार्डन, बी टी garden, C flat garden or D all of these. So here the right answer is all of these. Hill garden, tea garden and flat garden all are the types of Japanese gardens. अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हिल, टी और जो फ्लैट है वो किसके टाइप्स हैं, तो कैसे याद रखोगे कि मुगल के हैं, जापानीज़ के हैं। तो जापानीज़ हमारा फिर से पुराने क्वेश्चन पे आ जाओ, जापानीज़ इनफॉर्मल है और इनफॉर्मल क्लोथ्स जो होते हैं, फॉर्मल में तो क्या होता है, फॉर्मल क्लोथ्स होते क्या है, सूट पैंट होता है ना, तो एक बस सूट पैंट कोट पैंट पहन के चले जाओ। इनफॉर्मल में हमारे पास कितने सारे टाइप्स होते हैं, कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जापानीज़ इनफॉर्मल और इनफॉर्मल के ही टाइप्स होंगे डिफरेंट, हिल, फ्लैट, टी, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फीचर्स ऑफ इंग्लिश गार्डन इज, ऑप्शंस आर ए लॉन, बी herbaceous garden, C rockery and D all of these. Here the right answer is option number D, all of these, that is lawn, rockery and herbaceous garden, all of these are features of English garden. ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, रोहेल ने इंग्लिश गार्डन बनाया अपने घर में, ठीक है। रो मीन्स रॉकरी, हेल मीन्स herbaceous garden and L means lawn. Next is optimum size of bonsai is, options are A 15 to 20 centimeter, B 21 to 25 centimeter, C 30 to 60 centimeter and D 70 to 80 centimeter. Here the right answer is option number C, 30 to 60 centimeter is the optimum size of bonsai. बॉन्जाई क्या होता है, एक जापानीज़ आर्ट है जहाँ पे ट्रीज़ और श्रब्स हैं उनको कंटेनर्स में उगाया जाता है, ठीक है, और मिनी प्लांट्स होते हैं, काइंड ऑफ, है ना, मिनिएचर प्लांट्स होते हैं। तो इसका साइज़ कितना रहता है, 30 to 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिक्सचर ऑफ ड्राइड स्वीट सेंटेड प्लांट पार्ट्स इंक्लूडिंग फ्लावर्स, लीव्स, सीड्स, स्टेम्स एंड रूट्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, एक मिक्सचर होता है, उसमें फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, बीज भी होते हैं, ठीक है, तने, जड़ें, सब कुछ होता है उसके अंदर, एक मिक्सचर होता है, ठीक है, और ड्राई फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर ए मोरिमोना, बी मोरिबाना, सी पॉटपॉरी एंड डी बॉन्जाई। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पॉटपॉरी। क्या बोलते हैं उसको, पॉटपॉरी। बॉन्जाई आपको पता है, द जापानीज आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर ट्रीज एंड श्रब्स इन कंटेनर्स। और उसके अलावा मोरिमोना एंड मोरिबाना, इसको डिस्कस करते हैं ये क्या है। नेक्स्ट इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड एट। ऑप्शंस आर ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी न्यू दिल्ली एंड डी हैदराबाद। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, J&K. So Asia's largest tulip garden is situated at Jammu and Kashmir. Next is suitable plants for bonsai is, options are A Ficus religiosa, B Murraya exotica, C Hamelia patens and D all of these. So all of these is the right option and all of these are suitable plants for bonsai. Next is basic lines in Japanese flower arrangement is, options are A Earth Hike, B Man So and C Heaven Shin. ठीक है, ये तीनों की तीनों, ऑल ऑफ दीज क्या हैं, बेसिक लाइन्स हैं इन जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इकेबाना फीचरिंग पाइल्ड फ्लावर्स इन शेलो कंटेनर्स. ऑप्शंस आर ए मोरिमोना,
B. Moribana, C. Giovanna and D. Zenibana। ठीक है, तो नेचुरल है तो मतलब नेचुरल खुद की है, नेचुरल है, ठीक है, मतलब मोरी। और इकेबाना इस बाना, तो मोरी बाना होता है एक नेचुरल इकेबाना जिसमें पाइल्ड फ्लावर्स होते हैं शैलो कंटेनर में। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोरीबाना। Next is which of the following is English flower arrangement featuring fruits, vegetables and flowers in an arrangement? Options है मोरीमोना, मोरीबाना, वही सेम ऑप्शंस है। एंड इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट कौन होती है? मोरीमोना, जिसमें फ्रूट्स भी होते हैं, वेजिटेबल भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next is which of the following includes beautiful sculpture including wood, stone, rocks and metals which depicts any natural scenery? Options are A. Morimona, B. Moribana, C. Nagaire and D. Zenibana। तो मोरीमोना क्या था? इंग्लिश अरेंजमेंट थी। मोरीबाना क्या था? नेचुरल इकेबाना था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जेनीबाना एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर है जिसमें वुड, स्टोन, रॉक्स, मेटल सब कुछ होता है, एक नेचुरल सीनरी जैसा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इन साउथ इंडिया टू डेकोरेट लॉन्ग प्लेट ऑफ हेयर? ऑप्शंस आर ए. वेनी, बी. नगाइरे, C. Zenaika and D. Potpourri। Here the right answer is option number A, Veni. Veni is a special kind of flower arrangement in South India to decorate long plait of hair. Next is which of the following Japanese flower arrangement is of abstract style and do not simulate nature? ठीक है, और इसके जो मटेरियल होते हैं वो भी अनइवन हाइट के होते हैं। कौन सा है वो? ऑप्शंस आर ए. वेनी, बी. नगाइरे, C. Zenaika and D. Potpourri। तो बाकी सब क्लियर हो गए। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जेनाइका। जो जेनाइका है इट इज़ अ जापानीज़ फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है उसका, कोई नेचर से उसका ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है और अनइवन हाइट के होते हैं उसके मटेरियल। उसके अलावा नगाइरे बचा। नगाइरे क्या होता है? वेस्टर्न स्टाइल का है ये एक फ्लावर अरेंजमेंट, और इसमें फ्लावर्स जो हैं वो 1.5 टाइम्स टॉलर होते हैं। जनरली जो फ्लावर वास होता है उससे ज़्यादा टॉलर होते हैं। ओके, next question is Rosy Niva is also known as, options are A. Sand garden, B. Flat garden, C. Passage garden and D. all of these। So here the right answer is option number C, Passage garden जो है, ठीक है। So Rosy Niva हो गया Passage garden। Next is Hill garden is known as, options are A. Sukiyama Niva, B. Sukiyam Sansui, C. both A and B and D. none of these। Here the right answer is option number C, both A and B, that is Sukiyama Niva and Sukiyam Sansui are the names of hill garden। Now next is flat garden is known as, options are A. Sukiyama Niva, B. Sukiyam Sansui, C. Hiraniva, D. Rosy Niva। Here the right answer is option number C, Hiraniva is the name for flat garden। इसके अलावा जो फ्लैट गार्डन्स होते हैं उसमें हिल्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स ये सब एब्सेंट होते हैं, और सैंड गार्डन में क्या एब्सेंट होते हैं? प्लांट्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इज रयोंजी गार्डन, अ फेमस सैंड गार्डन इज सिचुएटेड एट, ऑप्शंस आर ए. क्योटो, बी. जापान, C. चाइना एंड D. बोथ A and B। So the right answer is option number D, both A and B, that is Ryoanji Garden, a famous sand garden is situated at Kyoto, Japan। ठीक है, जापान में ही है क्योटो। Now next is Japanese flower arrangement is called as, options are A. Ryoanji, B. Rosy Niva, C. Ikebana and D. all of these। रयोंजी क्या था? गार्डन है ये एक, है ना, सैंड गार्डन है। रोजी नीवा क्या है? रोज़ किससे जाते हैं? पैसेज से होके जाते हैं, पैसेज गार्डन से, तो रोजी नीवा पैसेज गार्डन है। तो बचा ऑप्शन नंबर सी, इकेबाना। जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज इकेबाना। नेक्स्ट इज इन जापानीज लैंग्वेज फिलर्स मीन्स, ऑप्शंस आर ए. जूशी, बी. शिन, सी. सो एंड डी. हिके। ओके, सो ये शिन, सो, हिके ये क्या है? एलिमेंट्स हैं उसके, है ना। हिके मीन्स अर्थ, सो मीन्स मैन एंड शिन मीन्स हेवन। तो बचा जूशी। जूशी होता है फिलर्स। हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन जापानीज लैंग्वेज फिलर्स मीन्स जूशी।
Next is prominent features of Japanese garden are options are A. Water, B. Stones, C. Evergreen plants and D. All of these. Here the right answer is option number D. All of these. Water, stones and evergreen plants are the prominent feature of Japanese garden. इसके अलावा जो जापानीज़ के लैंडस्केप के एलिमेंट्स हैं वो माउंटेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, ब्रिजेस, बट जो प्रोमिनेंट वाले फीचर्स हैं वो 3 कौन से हैं? वाटर, स्टोन, एवरग्रीन प्लांट्स. ठीक है. इंग्लिश गार्डन के क्या थे? रोहेल, रॉकरी, हर्बेशियस गार्डन एंड लॉन. और उसके अलावा मुगल के क्या थे? रनिंग वाटर, वारादरी, टेरेसेस. ठीक है. तो ये सबके फीचर्स, ये 3 है मेन इनके फीचर्स जैसे लर्न रखने हैं. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Okay, next is shape of Mughal garden is options are A. Rectangular, B. Square, C. Triangular and D. both A and B. So here the right answer is option number D. Both rectangular और square shape हो सकती है मुगल गार्डन की. Next is which of the following method is commercially used for foliage preservation? Options are A. KMNO3, B. KNO3, C. Glycerining and D. Sugar. Here the right answer is option number C. इसके अलावा कुछ और प्रिजर्वेशन मेथड भी होते हैं जैसे कि बरिंग इन सैंड, बोरेक्स, सिलिका जेल, वो भी बहुत फेमस है. Okay, this is all for today. See you all guys tomorrow and stay tuned to my channel. Subscribe, press the bell icon ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. Thank you so much.